Okay, Assalamu alaikum. Welcome to Learning Lens, a series that brings you inspiring educators shaping the future of learning. Today, we are joined by Ms. Javeria Zahid, a TEFL certified middle school teacher with over 3 years of classroom experience. Javiria is known for her compassionate approach, focus on learning by doing and for creating e-learning content on YouTube to support her students beyond the classroom. With a progressive mindset rooted in constructivism, Javiria believes every student is unique and deserves a supportive, engaging, and empathetic environment to grow, not just academically, but socially and emotionally as well. So let's dive into her journey and her teaching philosophy and how she's using technology, creativity, and care to make a lasting impact on her students. So thank you, Javeria, for your time today. You're welcome. Assalamu alaikum, Bilal. How are you? Walaikum salam. I'm great. Thanks for asking. So, Javeria, let's start with teaching philosophy and your practice. Um, you describe your teaching as rooted in progressivism and constructivism, right? And can you share a specific classroom moment that reflects this philosophy? So basically, progressivism is both of these learning strategies. They are student-centered strategies, and they are focused on real-world problems and how the students they identify that they collaborate together, and then they come up to a solution. So when I was working in Park School, there was this activity that I did with my grade 4 students for mathematics, and it was about I gave them Play-Doh, popsicles, stationary items, and I told them that you have to draw a certain landscape. It can be anything, and you can label it like, for instance, it can be a park, it can be a school, and they were drawing it through all of these equipments. And then they had to translate that particular landscape onto their map, and they had to tell, basically, we were doing cardinal directions. So they had to tell which the park is located as at the south of which particular location, और इसी तरह मतलब बहुत सारे उसमें चीजें थी, different questions थे जो कि वो खुद भी they could make up those questions and then they could answer them, or their peers they could answer those questions. So this was a very short activity that I did for mathematics with them. So, Javeria, इसमें age bracket क्या है बच्चों की? Basically, I am taking like I've taken grade 4 as well, from grade 4 to grade 7. This is my age. Yeah. नाइस 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 क्योंकि जो और भी ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो और ज्यादा मतलब कि हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती होगी बिल्कुल सो Yeah. मुझे लगता है कि उनको it's very difficult for the smaller kids to understand just by looking at the teacher and identifying different concepts until and unless they don't do hands-on experience. उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल 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 so Javeri, how do you balance structure and freedom in a progressive learning environment? Basically, you have to set up goals for your students. Like, obviously, जब आप ये learning strategies use करते हैं, so the students, they're coming up with their own ideas, their own concepts, and then they're going through all of those ideas and concepts during the class. So you have to define the goals. कि आपने goal set करना होता है कि this is what I want, and you can work in that parameter. You can work accordingly. Like for instance, एक English की हमने English lesson में fable writing हमने किया था. So fables, they are short stories, they have morals, right? So I told them they have to change only the ending. The rest of the story remains the same. You just have to change the ending. And then you have to come up with a new moral for that particular fable that we were discussing. It can be anyone. So you need to define the parameters. उससे बाहर जो है they can't go, because students they have a habit of going haywire here and there. Yeah, of course. So you just have to. So जवेरिया ये जो आपकी टेक्निक्स हैं ये कॉमन है हमारे स्कूल्स में या इज इट वेरी मतलब कि रेयर और ये क्या मतलब कि इसमें स्कूल एनवायरनमेंट में आ रही हैं अभी?
this, I mean, I would want to say this is not rare, but teachers, they tend to lose, like, even if I talk about experienced teachers, they Yeah. tend to lose over that. Yes, क्योंकि yes. वो फिर रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेड जो है वो काम करना चाह रहे होते हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट रादर देन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एक hassle है. So बहुत hassle है, बहुत hassle है. yeah. So, you shared your YouTube channel with us, but बल्कि in the description of this video, we have, you can just check out the channel of Miss Jovelia और सब्सक्राइब भी करें उसको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है और आपका बहुत हार्ड वर्क है उस पर. मुझे बड़ा मजा आया वो वीडियोस देखने का. So Thank you, sir. I want to question about that you've taken the initiative to upload e-learning content on YouTube. What inspired you to do this, and how has it supported your students? Honestly, that was just a random one day decision because it happened when there was COVID, or COVID में everything was going, Okay, okay. yeah, हर चीज जो है वो ई लर्निंग की तरफ जा रही थी, एंड आई वाज वर्किंग इन अ वेरी स्मॉल स्कूल एट दैट टाइम. और तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस पे काफी मेहनत की थी, एंड आई इट वाज लाइक अ रिकॉर्डेड सेशन फॉर द स्टूडेंट्स. सो वहीं से मुझे आइडिया आया कि सिंस दैट इफ इट इज रिकॉर्डेड एंड आई एम डूइंग, इतना मैं उस पर रिसर्च थोरो सब कुछ काम कर रही हूँ, सो व्हाई डोंट आई अपलोड दिस ऑन माय चैनल एज वेल. और वहां पे बल्कि जहां पे मैंने वो जो वीडियोस अपलोड किए, जो कि मेरी अपनी क्लासरूम की बेसिकली वो वीडियोस थी, उसमें देयर आर नॉट स्टूडेंट्स हु आर कमेंटिंग ऑन दैट, देयर आर पीपल, एक्चुअल पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन दैट, एंड दे आर डिस्कसिंग इट एज a political matter. So that was very something very new for me, and that really compelled me to do more about it. बिल्कुल बिल्कुल. वो आपकी वो वीडियोस देखे तो मुझे बड़ा ज्यादा, मतलब कि ऐसे काम में पैशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, एंड I saw that energy in you in that. So we will definitely share your channel in the description. So I request all of the viewers to definitely watch those. So the next question is related to that as well. So how do you ensure that your digital content is inclusive and engaging for middle school learners? Obviously, when we're talking about engaging, it has to be activity-based learning. Otherwise, it's not. And recently, I had an idea to engage more of my students because I'm a Cambridge, like I take Cambridge students. मैं Cambridge exams जो है conduct होते हैं, so I prepare students for that. So I had an idea कि why not I discuss the answers on my YouTube channel, the paper that they have already solved or they have given the exams. अभी obviously उनका result तो out नहीं हुआ. So I just had an idea कि मैं वो paper solve करती हूँ और उसको मैं upload करती हूँ. So this is how I mean, I like it's just experimenting because obviously nobody has the foolproof solution के वो किस तरह से engaging हो सकता है. It's just that you're trying different things. And inclusivity, obviously, digital content का तो मैं इतना नहीं कह सकती, बट अपनी क्लासरूम में तो मैं inclusivity रखना चाहती हूँ, in the sense that I know that not all my students are good in mathematics. Like that's very obvious. यहाँ पे कुछ बच्चों को बिल्कुल भी मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो उसको incorporate करने के लिए I do arts sometimes in between. मैं drawings वगैरह वो incorporate कर लेती हूँ, because I remember when I was teaching in Cornerstone, I have worked in a lot of different schools. So when I was teaching in Cornerstone, there was this one girl who was not at all interested in mathematics. उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. And when I shifted to geometry and I told them to draw shapes and different patterns, she was the only one who was giving me answers and who was, actively participating. तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि like it's just not about numbers. It can be anything. आप किसी और को चांस तो दो कि वो उसको डिफरेंटली परफॉर्म कर सके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब इसी तरह एक मैं क्वेश्चन सबसे ही पूछता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस फेस टू फेस लर्निंग, which is better, and at the same time क्या ऑनलाइन लर्निंग फेस टू फेस लर्निंग को in the coming future obsolete करेगा कि नहीं? What is your take on it? I'm very on the like I can't say कि it will totally replace it, because again जो face to face वाला experience है
that cannot be replaced anyhow. I personally think that. But when we are discussing online classrooms, it's just that कि आपकी engagement जो है वो different games से different activities से वो बढ़ सकती है. So people they do tend to enjoy that. बट व्हेन वी आर डूइंग फेस टू फेस ऑब्वियसली उसमें लर्निंग ज्यादा होती है, आपकी इंडिविजुअल अटेंशन भी होती है, वो आप एक्चुअली कैन लाइक टॉक टू योर स्टूडेंट्स एंड यू कैन टेल देम दैट यू हैव टू कंसंट्रेट. अगर ऑनलाइन है आप ज्यादा से ज्यादा म्यूट कर सकते हो ना एक बच्चे को, यू कांट डू मच अबाउट इट. सो आई पर्सनली थिंक फेस टू फेस का फिर भी इम्पैक्ट ज्यादा ही रहेगा. ऑनलाइन में ये है कि यस इट कैन बी इंगेजिंग through games, activities, and online applications. So, But it cannot replace fully, yeah, right? yeah. So, Javedi, do you use different platforms like जो game oriented learning होती है, आप वो platforms use करती हैं? Yeah, definitely. मैं अपनी हर ऑनलाइन क्लास में मेरी कोशिश होती है कि आई यूज क्विजेस. देयर इज एन ऐप कॉल्ड क्विजेस जिसमें वो Quizzes, यूज yes, होता है. quizzes, yes. It's a very एंड famous देन app. देयर इज या एंड देन देयर इज नेयरपॉड एज वेल, वो भी मैं यूटिलाइज करती हूँ. एंड कहूट वगैरह भी वो शुरू शुरू में यूटिलाइज किया था, बट दैट्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंग्लिश आई थिंक उसमें. बट दिस नेयरपॉड एंड दिस quizzes, that's also good for science and mathematics as well. So, what role do you see technology playing in building stronger learning communities? Um, Technology, obviously AI जब से introduce हुआ है तो everything is, you have to be on top of your game to identify where the students are using AI, where they can use AI. Yes, the communities they are building stronger in the sense that they are connected. You are connected to your students outside your classroom as well. But then again, you do have to see कि इसका बुरा impact now. Like it has to be a good impact on your students. बिल्कुल बिल्कुल जवेरी आपने एआई का जिक्र किया ना, तो मैं इतना एनवी करता हूँ ना जिन लोगों ने कोविड में ग्रेजुएट किया है, चाहे वो स्कूल्स में हो या यूनिवर्सिटी में हो, जिस तरह उन्होंने असाइनमेंट्स किए हैं, जिस तरह वो मेरे मतलब छोटे कजिन्स हैं वगैरह वगैरह, वो मुझे बताते तो ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार हमने तो इतने मुश्किल से किया है, और कोविड में मतलब कि थ्रू चैट जीपीटी अपनी असाइनमेंट्स बनाई है, Yeah, क्या क्या किया, पता नहीं किस तरह इन लोगों ने पास yeah, किया. सो yeah. इट्स जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई थिंक आती है ना, तो उसका मतलब कि उसको बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया जाता है स्टार्ट में, Exactly. बट आई थिंक अब नॉर्मलाइज हो रहा है. जो एआई के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इट्स गेटिंग मतलब कि लोग अब लेवरेज करते हैं, बट उसको मतलब कि उस तरह वो जो एक इम्प्रेशन आया था 2022 में, बहुत बुरा इम्प्रेशन, बहुत बुरा इम्प्रेशन. मैं पर्सनली अभी भी चैट जीपीटी पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं करती. आई डोंट नो, आई जस्ट हैव दिस थिंग. हालांकि मुझे काफी लोग कहते हैं कि इट विल इम्प्रूव योर लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड योर कंटेंट एंड एवरीथिंग, बट मुझे बहुत एक अभी भी हेजिटेशन है. आई थिंक दैट I need to use my brain, and I even tell my students, "Okay, use your own brain, use your own creativity. Do not rely on these apps." But then again, everyone is doing that. बट जवेरी इस पॉइंट पे ना, ये ऑब्वियसली मेरे कॉलीग्स में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट मेरा इसमें ये पॉइंट होता है कि हमारी कंपेटिटिव मार्केट में Yeah. जब हम थोड़ा सा स्टिफनेस दिखाएंगे, रिजिड होंगे एआई से, चैट जीपीटी हो या कुछ भी, तो जो बाकी लोग हैं ना वो आपसे ज्यादा स्पीड स्पीड वर्क कर लेंगे और आप पीछे रह जाएंगे. Yeah. दैट्स Yes, exactly. दैट्स माय आर्गुमेंट कि हमें ना, ठीक है, एक 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 परसेंटेज रखनी चाहिए लाइफ में कि जितना हम लेवरेज कर सकते हैं उतना लेवरेज करें. Yeah. क्योंकि अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे और वो जो है वो कंपेटिटिव मार्केट में लोग आगे चले जाएंगे. सो दैट इज माय आर्गुमेंट, ये मेरा पर्सनल आर्गुमेंट मैं सबसे करता हूँ जो लोग रिजेक्ट हो रहे होते हैं या स्टिफनेस दिखा रहे होते हैं. सो let's go further. So let's talk about your student-centered values. You emphasize empathy, rapid and emotional development. How do you build such a nurturing classroom environment? Obviously, when we're talking about the classrooms, emotional development, because again, there are like loads and different students that I have. Some students
जो हैं, like I have a student right now in my class who is she has a genetic condition. तो आपने उन सारे बच्चों को, and some people they have broken families, like they do come up, वो कभी ना कभी वो आ जाता है सामने. So you have to be very considerate about that. And in today's environment, everyone is very outspoken and very extrovert. So you need to clearly define कि some things are just not told to be directly, और उसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है. So for instance, when I talk about learning capabilities, I always tell my students कि मेरा एक काम यहाँ पर आकर उन 4-5 बच्चों से क्वेश्चन करना नहीं है जिनको ऑलरेडी आता है. मैंने उनसे क्वेश्चन करना जिनको नहीं आता. I need to focus on those students because those are the real students who need actually they need to come up and talk about whatever they are feeling or whatever they are having problems in. तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करूं, which sometimes does instigate. जो बच्चे जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं मेरे साहब हमसे कभी नहीं पूछती हैं, यू डोंट आस्क अस. बट मैं उनसे ये कहती हूँ कि फिर पता कैसे चलेगा कि वो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं तो उनका कैसे पता चलेगा. सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू इनकलकेट दैट. बिल्कुल जवेरिया, आपने जैसे ब्रोकन फैमिलीज का भी जिक्र किया, और इसी तरह एक बहुत ज्यादा सिंड्रोम्स भी बच्चों में आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एडीएचडी. हमारे जमाने भी होंगे, हमें भी होगा, हाँ. लेकिन nobody cared at that time. Yeah. बट Yeah. अब बहुत ज्यादा हो रहे. तो क्या ये स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द टीचर टू स्पेशलाइज इन सच थिंग्स लाइक एडीएचडी वगैरह? नहीं, हमारा जो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है जिसमें ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कुछ इस तरह के होते हैं तो दे वर ऑलरेडी मेंशन्ड इन दैट फाइल. सो वी हैव टू गो थ्रू एवरी ईयर व्हेन द क्लासरूम इज बीइंग सेट अप. वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स फाइल लाइक दैट. लेकिन ऑब्वियसली जब तक आप उन बच्चों से मिलते नहीं है, खुद इंटरेक्ट नहीं करते, एग्जैक्टली. you don't understand that. या Yeah, exactly. So one of my students, 2-3 students ऐसे हैं कि they are like very fidgety and they are like they can't sit for a longer period of time. तो मैं वो कहती हूँ अच्छा थोड़ी देर खड़े हो जाएं, खड़े होके बात कर लें, फिर बैठ जाइएगा. So you have to come up with these situations. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इस तरह के बच्चे इंटेलिजेंट भी, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी होते हैं. Yeah, but they're very creative. Yeah, exactly. So about parents, what strategies do you use to connect with parents and involve them in the learning journey? पेरेंट्स के साथ रेपो बिल्ड करना बहुत मुश्किल है आजकल के बहुत दौर मुश्किल है. में. बहुत I'm मुश्किल so glad that you said that. बहुत मुश्किल है. Yeah. वो तो ऐसे जज कर रहे होते हैं कि बस. Exactly. मतलब मुझे था कि शायद ये मसला किसी और नहीं कोई फेस कर रहा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक. Javeria, it's extremely stressful for the teacher. I totally understand that. या Totally understand that. बिल्कुल समझ नहीं आती कि इनको किस तरह से समझाना है कि whatever we are doing that is for the benefit of their children. And it's great. मतलब it's been like a record कि मैं जब भी क्लास स्टार्ट करती हूँ I'm the most what you can say just a very poor teacher in learning and everything, and by the end of the year I'm the best teacher. तो वही बात होती है कि रेपो बिल्ड करने में काफी टाइम लग जाता है, काफी ज्यादा. आई थिंक आधा साल तो इसी तरह गुजर जाता है कि आपको समझ आती है, उनको हमारी समझ आने लग जाती है, एंड देन वी गेट यूज्ड टू इट. बट पेरेंट टीचर मीटिंग इज दी ओनली सोर्स इन आवर स्कूल जिसमें हम लोग को पता चलता है कि पेरेंट्स व्हाट डू दे वांट एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. तो मैं उनको यही कहती हूँ कि whatever queries that you have, whatever problems that you have, please write in the diary और मुझे आप कम्युनिकेट करें. मुझे जब तक नहीं बताएंगे, किसी और के थ्रू अगर मुझे पता चलेगा तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वियर्ड फॉर मी, और वो बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में मेरे पास आता है. सो यू नीड टू कम्युनिकेट कि व्हाट इज देयर ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं. मुझे कोई मसला थोड़ी, अगर आपके बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है सो ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प हर. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इसमें जवेरिया फिर ये बताएं कि प्रोग्रेस rather than perfection. Obviously perfect तो कुछ नहीं हो सकता. तो आपने मतलब कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 20-30 बच्चे हैं, राइट?
और ये मैं मतलब कि जो यंग टीचर्स हैं ना, जो कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बताएं कि किस तरह बच्चों को सारे, जो पूरा आपकी जो बस में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको आप सबको किस तरह केटर करती हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करनी है बच्चे ने। परफेक्शन तो कुछ नहीं है, परफेक्शन इज नथिंग, आई बिलीव, या ऑफ कोर्स इट्स नथिंग। तो हाउ डू यू प्रोग्रेस विद अ लॉट ऑफ किड्स, और आपको नाम सिर्फ मतलब कि आपको याद रखना कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। पुराने हमारे जमाने में तो ये था ना कि ये तो करता ही नहीं, इसको साइड पे करो। अब ऐसा नहीं है। साइड में बिल्कुल भी नहीं। आई आई एवरी टाइम इन माय क्लास आई मेंटेन एन एक्सेल शीट, और उसमें मैं हर मंथ के जो है वो मार्क्स वगैरह वो टैली कर रही होती हूँ, एंड देन आई स्पेसिफिकली कॉल आउट दो स्टूडेंट्स के so and so has increased her marks in mathematics, she has improved. तो जो इम्प्रूवमेंट वाला जो फैक्टर है ना, उसको मैं बहुत ज्यादा मेंशन करती हूँ ना। आई कॉन्ग्रेचुलेट दो स्टूडेंट्स इन द क्लास, ताकि उनको अंदाजा हो कि इवन अगर वो 1-2 मार्क्स या 10% से भी इंक्रीज करें, इंक्रीज इज व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट यू टू जस्ट गो एंड जंप ऑन टू 80% और 90%। अगर आप 30% से भी 40% पे आ रहे हो, दैट इज प्रोग्रेस फॉर मी, दैट मीन्स आई एम डूइंग माई पार्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो Javeri, अबाउट योर गोल्स एंड ग्रोथ, योर मोटो talks about small steps and doing hard things, right? How do you communicate this mindset to your students? Obviously, I encourage them to ask questions, because until and unless they're not going to ask questions, I won't get to know okay, what is the problem behind a particular concept. Mein. So they have to speak up. They have to tell me what is not understood. और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन डू अ सिमिलर क्वेश्चन, द इजियर वन, एंड यू कैन टेल मी द आंसर। मुझे एक स्टेप करके बता दें, मुझे 2 स्टेप्स करके बता दें, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, जस्ट कम अप एंड सॉल्व 1 or 2 steps so that I know that you're making progress. बिल्कुल बिल्कुल। So, so what are some personal or professional growth goals you are currently working on as an educator? कोई ड्रीम, कोई कोई गोल? ड्रीम्स तो बहुत सारी है। आई रिसेंटली लाइक आई टॉक टू लम्स एक्स के नाम से, देयर वाज इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड आया था, इट वाज अबाउट स्टेम लर्निंग इन क्लासरूम्स। सो लम्स एक्स के मैं भी गया था, बिल्कुल मैं भी इसमें इज इट जाता था। गुड, इज इट वर्थ इट? अब मुझे अब ये नहीं पता आप कौन से स्टेम लर्निंग में नहीं गया था मैं, बट इट वाज रिलेटेड टू ऑनलाइन लर्निंग, वो लम्स एक्स का ही था, लाइक 4-5 months ago। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, it सो डिड was यू लर्न एनीथिंग, लाइक फिर फायदा हुआ? स्टेम लर्निंग का नहीं, मुझे आप बताएं स्टेम लर्निंग के बारे में आप। ओके। सो या वो मैंने अभी करंटली इनरोल उसमें किया है, इट्स हैजंट स्टार्टेड येट। और अपने स्कूल में भी मैंने बेसिकली, हमारे स्कूल वाले जो है वो कैम्ब्रिज की सर्टिफिकेशन वगैरह वो करवाते रहते हैं। सो आई आस्क्ड माय एडमिन टू एंटर माय नेम इन द कैम्ब्रिज। उसमें इट्स अबाउट द, सिंस आई एम primarily a mathematics teacher, so I'm doing it for mathematics middle school, जो है वो मेरा एरिया होगा, एंड कैम्ब्रिज की सर्टिफिकेशन होगी। So I'm thinking about वेरी नाइस, that as well. So these are the two current. वेरी नाइस। विश यू बेस्ट ऑफ लक जवेरिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सॉरी, आपकी आवाज Thank you कट so गई थी, much. आपकी आवाज कट गई थी। When I was mentioning the Cambridge one. नहीं नहीं नहीं, अबाउट द सर्टिफिकेशन इन द लास्ट व्हेन यू स्टॉप्ड। Okay, so basically it's a Cambridge certifications होती हैं, and it's regarding whichever subject that you want to choose. So primarily I'm a mathematics teacher, so I've chosen mathematics as my core subject, और middle school के लिए which is like grade 5 and 6, उन grades को focus करता है. So there's a Cambridge certification that probably is going to happen in the later end of the year. तो वो उसमें मैंने enroll करवाया हुआ है अपने आप को। वेरी नाइस जवेरिया, वेरी नाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अब बताएं आपकी मोटिवेशन, बताएं टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में, कि टीचिंग प्रैक्टिस में जो मोटिवेशन है, सुबह उठना और सोचना कि इनके पेरेंट्स से भी बात करनी है, इन्होंने मुझसे सवाल करने हैं, तो ये मोटिवेशन जो है बीइंग ए टीचर, प्रैक्टिसिंग टीचर, मतलब कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने टीचिंग और गिव अप की है,
क्योंकि उनकी मोटिवेशन जो है ना वो Yeah, डिस्ट्रॉय हो जाती है. yeah, So yeah. I don't think so. I will ever leave teaching or I will ever leave this particular area. Um, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मुझे तो बल्कि आई वाज टॉकिंग टू माय कोलीग्स एंड आई वाज टेलिंग देम कि मैं घर में नहीं बैठ सकती हूँ लाइक ये समर वेकेशंस आ रही हैं तो आई कांट सिट एट होम आई नीड टू डू समथिंग सो दिस इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर हैपनिंग इन समर वेकेशंस मैं देयर इज अ स्टेम लैब उनको भी मैंने बोला कि हम लोग आपका अगर समर कैंप चल रहा है तो उसमें मैं एज अ हेल्पर के तौर पर आ सकती हूँ so like teaching is one thing where I am myself and I think I won't leave teaching until and unless I get $100 million so maybe I will but for instance like अभी तक तो नहीं है मेरा इरादा of course, of course, of course. So, Javeli, about in the last about your personality and everything. So, you've mentioned about swimming, and you do gym, blogging, and cooking. How do these interests influence your teaching or yeah connect with your students? yeah जिम रियली हेल्प्स मी इन बीइंग काम जो मुझे पेरेंट्स के मुझे जो क्वेरीज आती रहती हैं और मुझे होता है कि यार ये इनको क्यों समझ नहीं आ रहा वो जो एक मतलब बिल्डअप होता है ना अग्रेशन वो जिम बहुत अच्छे तरीके से मेरा जो है ना वो उसको कूल डाउन कर लेता है बट या फॉर कुकिंग कुकिंग इज ऑल अबाउट रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस ऑनेस्टली सो आई इवन टेल माई स्टूडेंट्स हम कोई ना कोई एक्टिविटी रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर करते हैं मैथमेटिक्स में Mm. so I relate to it as well. So, and you do you like traveling as well? Trekking, camping, etc. Yes, yeah, exactly. The northern areas of Pakistan. Yes, exactly. I love to, but obviously I have kids. ये थोड़ा सा limitation आ जाती है, but Yeah, definitely. but मैं भी यही कहता हूँ कि साल में ना एटलीस्ट एक दफा आपको ना अपने शहर से निकल के ना Hmm. पहाड़ों में या जो भी आपको अच्छा लगता है मुझे तो पहाड़ी अच्छे लगते हैं तो वो वहां से बंदा ना बिल्कुल खाली होके आता है आपका ब्रेन जो है ना बिल्कुल एम्प्टी होके आता है वेरी लाइट एंड इट्स वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक And मतलब क्या once a year you need to travel. या प्लीज 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 Hmm. नहीं नहीं I was just saying that once a year you need to travel, you need to get out of the mundane आप जो normally कर रहे होते हो. And alhamdulillah, over the years, I did get an experience to travel solo trips as well. So it has been very, honestly, very fun, and it has been very therapeutic as well. Exactly, exactly. So in last, Javelia, if you could design your dream classroom or school, what would it be like? It would be really colorful, honestly. Colorful सबसे पहली होगी because I don't like वो जो वाइट डेस्क और ये जो Yes, बिल्कुल why? टीचर के बिल्कुल. सामने खड़े होकर जो टीचर जो है वो एक मतलब टीचर फोकस लर्निंग जो है ना मुझे वैसे नहीं पसंद अनफॉर्चुनेटली इसी तरह वैसे अभी मैं फिलहाल कर रही हूँ बट आई वुड वांट स्पेशियस क्लासरूम लाइक sitting maybe on the carpets and colorful classrooms and then there should be smart screens जिसमें बच्चे आके interact कर सके which we do have alhamdulillah और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट द नॉर्म आजकल जो है वो इधर ही जा रहा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए इंडिविजुअल नीड्स को केटर करना चाहिए ये नहीं कि एक सेट करिकुलम है और वो बेचारा बच्चा जो है वो जो सबसे नीचे वो फंसा हुआ है क्योंकि वो मैंने बिकॉज आई टेक ऑनलाइन ट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में मेरी एक बच्ची है और शी इज लाइक टेलिंग मी कि आई गो टू अनदर क्लास and asked her, what do you mean by another class? तो कहती है कि वो क्लास जो है like there are different groups, different classrooms, some for the high achievers, some from the low achievers, और वो उनको ग्रुप करते हैं. हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. हम बस सारों को एक जैसा पढ़ाते हैं, सारों का एक जैसा एग्जाम लेते हैं और सारों को हम एक जैसी उसकी जो है ना मतलब हम लोग बर्डनाइज करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल जवेरिया अभी आपने इसमें अभी अपने वर्ड यूज किया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग
मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज किए तो उसमें भी टीचर्स ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बहुत एम्फोसाइज किया। तो आप मुझे इसको जरा थोड़ा सा डिकोड करें कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऑडियंस के लिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है और क्यों जरूरी है ये। बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सबसे जो अच्छा इम्पैक्ट होता है ना, इट्स कोलैबोरेशन. The students who don't have much ideas, who cannot brainstorm enough, तो वो दूसरे बच्चों के साथ जब मिलके बैठते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज अगर हम अपनी भी बात करें, अगर आज हम जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते थे तो हम लोग ग्रुप्स बनाकर जो है, जिस बच्चे को आता होता था लड़का या लड़की को, वो हमें पढ़ाता होता था, एंड दिस इज हाउ वी यूज्ड टू कोलैबोरेट. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द यंगर किड्स एज वेल, कि आपने कोलैबोरेट करना है, आपने दूसरों के आइडिया सुनने हैं, वहां से आपने लर्न करना है, और इसके बाद आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड यू हैव टू डिजाइन दोज प्रोजेक्ट्स. लाइक देयर इज नॉट लाइक वही अगेन, जो सेट रूल्स हैं वो गाइडलाइंस गिवन है, बट यू हैव टू कम अप विद योर ओन आइडियाज एंड यू हैव टू लर्न थ्रू आउट दैट स्टेप. तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड. दिस इज जो सबसे ज्यादा लर्निंग होती है वो इसी चीज में होती है. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवेरिया। इन लास्ट आपसे एडवाइस लेनी है फॉर द यंग टीचर्स और स्ट्रगलिंग टीचर्स एंड आल्सो फीमेल टीचर्स। तो आपकी क्या एडवाइस है सबके लिए? I would just tell them कि like there are a lot of my fellow colleagues as well, my friends as well. Unfortunately, जब तक आप bilingual नहीं होंगे, जब तक you would not improve your language and especially English, तो आप जितने भी अच्छे टीचर हो जाएं, you're not going to go far. Unfortunately, you have to, सबसे पहले तो आपने अपने आप पर वर्किंग करनी. You have to have those courses. बहुत इजी कोर्सेज भी होते हैं, बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज भी होते हैं. यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ. वंस अंटिल एंड अनलेस यू डोंट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कांट कम अप इनटू टीचिंग, बिकॉज फिर आप वही दकियानूसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे और अब वो चीज काम नहीं करती है. लाइक द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, यू हैव टू कम अप विद न्यूअर आइडियाज, और इस तरह से आपको लर्निंग जरूर करनी पड़ेगी. सो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन यू कम अप टू दिस एजुकेशन सेक्टर. एंड आई थिंक दैट्स इट. जो ये इसमें इसी एडवाइस में आप, सॉरी आपको काट रहा हूँ, इसी एडवाइस में आपने ये भी बताना है अबाउट योर सर्टिफिकेशन अबाउट टेसोल एंड जो आपने इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो किया है कोर्स, एज वेल एज अदर सर्टिफिकेशंस, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं थ्रू टाइम आप सर्टिफिकेशन लें, ये भी अपनी एडवाइस में जरा आप बताएं यंग टीचर्स को और स्ट्रगलिंग टीचर्स को. या नहीं, ऑब्वियसली आपकी सीवी को यही चीजें इम्प्रूव करती हैं. इवन इफ यू हैवंट had, like I have not had a bachelor's in education, मेरा कोई bachelor's नहीं एजुकेशन में, but I have done lots of different certifications. I've done PGT, post graduate diploma मैंने किया हुआ एजुकेशन में. मैंने टेफल किया हुआ है. दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स, और वो ऑनलाइन कोर्स के मॉड्यूल्स होते हैं, वो आप खुद ही पढ़ते हो, खुद ही आप देते हो, एंड देन यू जस्ट गेट दैट सर्टिफिकेशन एज वेल. फिर मैंने आइल्स भी किया था, उसकी तो खैर 2 years की वो होती है, 2 years of पास, बट आई डिड आइल्स एज वेल एंड आई स्कोर्ड 7.5 इन दैट. फिर इसके अलावा ये इसी तरह, जिस तरह समर वेकेशंस में जो शॉर्ट कोर्सेज आते रहते हैं, आई एम ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर इट. हालांकि मुझे, हर टीचर को यही लगता है कि वो सबसे बेस्ट है और उसको सब कुछ आता है, लेकिन बट स्टिल आप, दिस इज अ लर्निंग जर्नी. आप कभी भी कुछ भी नया आप लर्न कर सकते हो, सो यू डोंट नीड टू स्टॉप फॉर दैट. बिल्कुल बिल्कुल जवेरी, आई टोटली एग्री विद यू कि लर्निंग जो कर्व है ना वो खत्म नहीं होना चाहिए आपका. अदरवाइज ये जो आपने कहा ना कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ या मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, ये बहुत बड़ी एरोगेंस है और बहुत, मतलब इट्स अ बिग मिस्टेक. और वो समहाउ वो साथ साथ वो ब्लर होता जाता है, उसका सारा एक्सपीरियंस ब्लर होता जाता है और वो कुछ लर्न नहीं कर पाता. और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, ये हमारी भी फील्ड में, सॉफ्टवेयर हो या कोई भी इंडस्ट्री, उसमें भी कोई रिजिड हो गया है तो क्या अगले ना अगले कुछ अरसे में उसका फिर डाउन शुरू हो जाता है. So exactly. yeah, so thank you so much, Javeria, for sharing your heartfelt journey with us, your dedication to creating meaningful tech-enabled learning experiences, your empathy-driven teaching philosophy, and your strong belief in progress over perfection.
are a reminder of a powerful role educators play in shaping lives. So, once again, I would request all of the audience to go in the description of this video and click on Javeria's YouTube channel and subscribe and do watch those videos. Those videos are really amazing, to be very honest. So Thank you so much. we hope this episode inspires teachers to embrace continuous learning and remind students that every small step forward counts. So stay tuned for more stories that spotlight educators like Javeria who are building better futures, one student at a time. So this is Learning Lens. Until next time, keep learning and keep growing. Thank you so much, Javeria, and Khudafis.